Hello students, how are you? I hope you all are well. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Silver Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about electrophilic substitution reaction. Okay, today we are going to study a new topic, polyhalogen compound. Okay, this is last lecture of haloalkanes and haloarenes. In polyhalogen compound, we will discuss about CH2Cl2. It means dichloromethane. Structure C bond Cl, Cl, H and H. Okay. Another compound CHCl3. It means trichloromethane. Structure C bond Cl bond Cl bond Cl and bond H. Okay. Another compound CCl4. CCl4. Structure C bond Cl 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 and Cl. Okay. Another compound CHI3. Okay. CHI3 means this is iodoform. This is iodoform and structure C bond H. Here is the 3I bond I and I. Okay. And another compound freon. Okay. In this lecture we will discuss freon 12. Okay. Freon 12. This is important compounds. And last compound of polyhalogen compound is DDT. DDT. It means diphenyl trichloroethane. DDT is insecticide. Insecticide. Okay. So today we will discuss about dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoform and DDT. Okay. So first polyhalogen compound is CH2Cl2 and name of this compound is dichloromethane. Okay. And this is the formula of dichloromethane and this is the name of dichloromethane. Okay. First preparation. How to prepare CH2Cl2. Okay. In first lecture we have discussed about halogenation. Okay. So dichloromethane we will prepare by halogenation process. Okay. By CH4 molecule. CH4 molecule. When CH4 react with Cl2 molecule in the presence of sunlight, it means HNO. Okay. Or this reaction takes place by free radical halogenation process. Okay. This reaction takes place by free radical halogenation process. तो मैंने जब क्लास में इसको स्टार्ट किया था तभी आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म सब समझाया था मैंने. बस यहाँ पे हम इतना बताएंगे कि यहाँ पे CH4 से एक H निकलेगा और एक Cl आकर के यहाँ पे ऐड होगा. ओके. तो यहाँ पे क्या बचेगा CH3 और यहाँ पे Cl. अब बचा क्या, एक H यहाँ से रिमूव हुआ -H और एक Cl यहाँ बचा था तो यहाँ हो गया HCl. ओके. फिर इसी प्रोसेस को हम फिर HNO लाइट और रिएक्शन कराएंगे किससे, Cl2 से. फिर एक H रिमूव होगा और एक Cl जाकर के ऐड होगा तो बनेगा हमारा CH2 और एक Cl ऐड हो जाएगा
तो Cl2 और यहाँ पे निकल जाएगा एक H और यहाँ से एक Cl HCl। ओके, तो आपका बन गया CH2Cl2, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे H H CH2 एंड Cl। ओके, CH2Cl2, दिस इज द डाइक्लोरोमीथेन। ओके, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूज एंड हार्म्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ओके ओके, डाइक्लोरोमीथेन यूज एंड हार्म्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो यूज, फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ओके, second, it is used as paint remover. Okay, and third, it is used as a propellant in aerosols. Okay, and fourth, manufacture of drugs, मतलब इसका यूज ड्रग्स बनाने में किया जाता है, पेंट रिमूवर में किया जाता है, एज अ सॉल्वेंट के लिए भी डाइक्लोरोमीथेन का यूज किया जाता है। ओके, और ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज होता है। हार्म्स, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है हम लोगों को? फर्स्ट, इट हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। सेकेंड, इट काजेस इम्पेयर्ड हियरिंग और विजन, और ये हमको सुनने और देखने में भी इफेक्ट करता है। कौन? डाइक्लोरोमीथेन। ओके, एंड थर्ड, इट काजेस डिजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग, नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज। फिंगर्स और टोज में क्या काज करता है ये? डिजीनेस, जैसे चक्कर आ जाना, नोसिया, जी मचलाना, टिंगलिंग होना और नमनेस होना। ओके, किसमें? फिंगर एंड टोज में। ओके, एंड लास्ट हार्म ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज इट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आईज। ये हमारे आईज पर डायरेक्ट अगर ये कॉन्टैक्ट में आता है तो ये क्या कर सकता है? कैन बर्न कॉर्निया। ओके, तो इससे जो है कॉर्निया जलने लगता है, ज्वलन, बर्निंग होने लगती है कॉर्नियम, आई के कॉर्नियम। ओके, तो दीज आर यूज एंड हार्म्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सेकेंड कंपाउंड इज ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। ओके, नेम इज ट्राइक्लोरो। Trichloro means there is three chlorine, trichloromethane. Okay, first preparation, trichloromethane, same process by halogenation process। क्या चाहिए हमको? मेथेन। ओके, हैलोजनेशन किससे कराएंगे? हैलोजन से, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा? सेम प्रोसेस, एक Cl ऐड होगा, एक H निकलेगा, तो यहाँ से रिमूव होगा HCl और यहाँ पे बनेगा CH3Cl। ओको, क्लोरोमीथेन। एंड सेकेंड, फिर वही HNu के प्रेजेंस में Cl2, फिर एक Cl जाके ऐड होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? CH2, एक Cl ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl2 और रिमूव होगा HCl। ओके, एंड थर्ड स्टेप में हम आएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट। ओके, फिर एक H रिमूव होगा और एक Cl जाके ऐड होगा, तो बनेगा क्या? CHCl3, एक H निकला और यहाँ पे क्या बचा था? एक Cl, तो हो गया HCl। ये हमारा है ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हार्म्स एंड यूज ऑफ chloroform or trichloromethane. Okay, this is preparation of trichloromethane or chloroform. Okay, so properties of trichloromethane. First property,
is it is colorless, okay, and second as anesthetic, इसका यूज एज अ एनोस्थेटिक के रूप में किया जाता है, एंड थर्ड इन प्रोडक्शन फ्रियान रेफ्रिजरेंट R22, ओके, मतलब फ्रियान के प्रोडक्शन में किया जाता है कौन सा, R22, एंड नेक्स्ट टू प्रिपेयर रेफ्रिजरेंट्स, और इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट्स को प्रिपेयर करने में। हार्म्स क्या इसके हैं, फर्स्ट हार्म्स इट कॉजेज central nervous system, and second it causes dizziness, चक्कर आना, headache, okay, and it can cause damage to liver, ये liver को डैमेज कर सकता है, and kidneys, और kidneys को भी, and fourth important harms, ये बहुत ही important है कि क्या कि it oxidize to phosgene, ये phosgene में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट, ओके, एंड सो इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड कंप्लीटली फील्ड बॉटल, इसलिए इसको हम डार्क कलर्ड बॉटल में इसको स्टोर करते हैं, किसको, ट्राईक्लोरोमीथेन को, ठीक है। इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि कैसे ट्राईक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है फॉस्जीन में, ओके। तो दिस हार्म्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम 2 मोल यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म 2CHCl3 एंड रिएक्शन कराएंगे O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2COCl2 में, ओके, एंड प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 2 * 2H, यहाँ पे 2H, एंड Cl कितने हैं, 2 × 3 = 6, यूज कितना हुआ, 2 × 2 = 4, बचा कितना 2, ओके, तो यहाँ पे हो गया Cl 2HCl, ओके, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, और यही COCl2 दिस इज द फॉस्जीन, ये हमारा क्या है, फॉस्जीन है, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, कौन, फॉस्जीन गैस, ओके। तो ये आपका था क्या, क्लोरोफॉर्म और ट्राईक्लोरोमीथेन। थर्ड कंपाउंड इज आयोडोफॉर्म, formula is CHI3, or you can say triiodomethane, triiodomethane, okay. So properties of triiodomethane is, it is pale yellow crystalline compound, okay, and second property it is volatile, okay. So it is pale yellow crystalline compound called iodoform or triiodomethane, and it is volatile, okay. And preparation, how to prepare iodoform, okay. For the preparation of iodoform, we will take iodine and react with NaOH, okay. When iodine react with NaOH to form NaOI, okay, and plus HI, NaOI का हम कितना मोल लेंगे, 3 मोल, और रिएक्ट कराएंगे एसीटोन से, फार्मूला CH3CO एंड CH3, ओके। अब यहाँ पे I कितना है, 3 × 1 = 3I, यहाँ से 3H को रिमूव कर दीजिए, ओके, तो बन जाएगा क्या, ये C3I से 3H को रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा CI3 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे CH3 प्लस बचा क्या हमारा 3NaO, 3 × 1 = 3I, तो यहाँ आ गया 3H बचा, तो लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे H, बैलेंस हो गया 3 × 1 = 3H, मतलब बन गया
OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये जो कंपाउंड हमारा बना है CI3COCH3, इसका रिएक्शन फिर कराएंगे हम NaOH से। ओके, तो क्या बन जाएगा CHI3 मतलब आइडोफॉर्म, और बचेगा क्या यहाँ पे, इतना बचा CH3CO, CI3 है, इसमें से H यहाँ आके ऐड हो गया, ठीक, तो बचा क्या CH3 और क्या CO, और इसमें क्या बचा हुआ है ONA, तो यहाँ हो गया ONA मतलब सोडियम एसीटेट, और ये बन गया हमारा आयोडोफॉर्म। ओके, तो आयोडोफॉर्म के प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म NaOI, सोडियम आयोडेट, एंड प्लस HI, और NaOI react with acetone to form this compound, and this compound further react with NaOH to form iodoform. Okay, so this is the preparation of iodoform. Now we will discuss about use and harms of iodoform. Okay, so use of iodoform is first as a disinfectant, okay, and second it is used an antiseptic, इसका यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में किया जाता है। एंड हार्म्स, व्हाट इज द हार्म्स ऑफ आयोडोफॉर्म, फर्स्ट हार्म इज इट इज हार्म टू सेंट्रल नर्वस system, and second it causes dizziness and headache, and third it harms poor muscle coordination, and fourth is it causes irritation of nose and throat. Okay, so these are use and harms of iodoform. Okay, next compound, fourth is CCl4 with the carbon tetrachloride, okay, or trichloromethane, sorry, tetrachloromethane, sorry. Preparation सेम, CH4 एक साथ अगर दिखा दें यहाँ पे CH4 प्लस Cl2, अगर एक ही साथ यहाँ पे 4 ले लें, 4Cl2, और इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रिएक्ट कराएं मेथेन को किससे, क्लोरीन के साथ, तो डायरेक्टली आपका बनेगा CCl4 प्लस 4HCl। रिएक्शन देखिए 4 2 8, यहाँ पे 4 एंड 4, हाइड्रोजन 4 एंड 4 1 4, है ना। तो सिंपल रिएक्शन में हम कर सकते हैं, दिस इज द टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, इसी को आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। एक क्लोरीन को ऐड करिए, एक Cl को निकालिए, Cl, फिर जो बने फिर Cl2 से रिएक्ट कराइए, तो आप इसको 4 स्टेप में कंप्लीट करके बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाउ वी विल डिस्कस यूज, हार्म्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके गाइज, so use of carbon tetrachloride is first use, it is used as a solvent, this is most important solvent in organic compounds, okay, and second use it is used as a propellant, इसका यूज़ प्रोपेलेंट के प्रोपेलेंट में भी किया जाता है, प्रोपेलेंट के लिए, एंड थर्ड इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, एंड फोर्थ इज it is used for the preparation of chlorofluorocarbon. Okay, chlorofluorocarbon means CF2Cl2, okay, and other chemicals में, ठीक है, अदर केमिकल्स को प्रिपरेशन में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, एरोसॉल्स में यह प्रोपेलेंट के फॉर्म में भी इसका यूज़ होता है। एंड व्हाट इज द हार्म्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फर्स्ट हार्म्स इट कॉजेज लीवर कैंसर, ये लीवर कैंसर को भी काज करता है, एंड सेकेंड इट कॉजेज डिजीनेस, चक्कर आना, नौसिया, जी मचलाना, एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना, इसके लिए भी
कार्बन टेट्राक्लोराइड रिस्पॉन्सिबल है एंड इट कॉजेज इरिटेट द आईज and next it depletes the ozone layer. This is the most important harms. This is most important point is it depletes the ozone layer. यह ozone layer को डिप्लीट करता है एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, और ये कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. कौन? कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज freon. This is important. Okay, what is freon? कहेंगे क्या? The chlorofluorocarbon compound of methane and ethane. The chlorofluorocarbon compound of methane and ethane are collectively known as freon. Okay, so what is the freon? The chlorofluorocarbon compound of methane and ethane is collectively known as freon. Okay, so next topic is preparation. How to prepare freon. Okay, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि ओजोन डिप्लीशन के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. तो इसको हम लोग CCl4 से बना सकते हैं. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से किससे कराएंगे? 2HF से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराएंगे. किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5 के प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड से कौन रिएक्ट करेगा? HF. ओके, तो क्या बनेगा हमारा? CF2Cl2 प्लस 2HCl, है ना. मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? CFFClCl, है ना. डाइक्लोरो दो क्लोरीन है, डाइफ्लोरो दो फ्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइफ्लोरोमीथेन. ओके, तो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ द मीथेन एंड इथेन इज नोन एज फ्रियान. इसको बनाना है तो हम स्वाड रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं. CCl4 रिएक्ट विथ HF इन द प्रेजेंस ऑफ Sb5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रियान बोलते हैं. ओके, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियान. ओके गाइज, what is the use of freons? First use, it is used as a solvent. Okay, and second use, it is used as a propellant in aerosols, and third use, it is used in refrigerators, मतलब फ्रिज में इसका यूज़ किया जाता है, and air conditioners. Okay, and what is the harms of freons? First, it causes greenhouse effect. I hope everything know about greenhouse effect. Okay, so freon responsible for greenhouse effect, and second, it causes ozone layer depletion. Okay, and third, it initiate the रेडिकल चेन रिएक्शन. ये रेडिकल चेन रिएक्शन को भी इनिशिएट करता है. कैसे इनिशिएट करता है हम आपको बताते हैं. इसे पहले फ्रियान का फार्मूला है CFFClCl. ओके, इसमें क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इधर शिफ्ट होगा एंड इधर शिफ्ट होगा. आपने 11 पढ़ा होगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन. इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. एक इधर शिफ्ट होगा और एक इधर शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या? CF2Cl फ्री रेडिकल और प्लस यहाँ पे बनेगा Cl फ्री रेडिकल. ओके, ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा ओजोन मॉलिक्यूल से, O3 से. ये बनाएगा क्या? ClO प्लस O2, क्लोरो ऑक्साइड. इसका नाम है क्लोरो ऑक्साइड. ओके, और ये जो हमारा क्लोरो ऑक्साइड है ClO, दिस इज द रिएक्ट विथ नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा
तो फिर से बन जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल और प्लस ये बन जाएगा ऑक्सीजन O2, ओके। और ये Cl फ्री रेडिकल जो हमारा है, ठीक है, ये बनता रहेगा तो ओजोन लेयर से रिएक्ट होता रहेगा और ओजोन लेयर को डिप्लीट करता रहेगा। ओजोन से रिएक्ट करेगा तो क्लोरो ऑक्साइड बनेगा और दिस क्लोरो ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ओके, है ना। तो इस रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। पहले ये फ्री रेडिकल में चेंज होगा, Cl फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा ओजोन से, ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, क्लोरो ऑक्साइड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। और जो क्लोरो ऑक्साइड बनेगा वह नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से क्या बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ओके। और ये फिर फ्री रेडिकल बनता रहेगा जो ओजोन लेयर से रिएक्ट होकर के क्लोरो ऑक्साइड बनाता रहेगा और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहेगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज DDT। इसका नेम होगा PP डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन, ओके। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, बेंजीन रिंग और यहाँ पे होगा Cl और यहाँ पे होगा Cl और यहाँ पे होगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे Cl, Cl एंड Cl, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, ओके। इसी को हम बोल सकते हैं, देखिए इसको कहा गया पैरा, P मीन्स पैरा, पैरा पैरा मतलब ए भी पैरा पोजीशन है, ए भी पैरा पोजीशन है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2, तो हम कहेंगे क्या, डाइक्लोरो। और डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाई थे, PP डाइक्लोरोफेनिल एक साथ रहेगा। PP पैरा पोजीशन पे ही देखिए आपका क्या है, क्लोरीन और डाइक्लोरोफेनिल और यहाँ पे फेनिल है और ईथेन, यहाँ देखिए कार्बन और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो और ईथेन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, DDT को डाई क्लोरो मतलब 2 क्लोरो, डाई फेनिल मतलब 2 फेनिल और क्या है, ट्राई क्लोरो मतलब 3 क्लोरीन और ईथेन का मतलब 1 2 एथ सभी सिंगल बॉन्ड एन, है ना। तो डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो ईथेन, तो टोटल क्या हो जाएगा, DDT। तो DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो ईथेन, ओके। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ DDT, ओके। तो फार्मूला होता है CCl3CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, या इसको हम ऐसे कर दे, ओपन कर दे CCl, ऐसे लिख सकते हैं CCl3, इसका नाम है क्लोरल, ओके। इसका रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन, यहाँ हो गया Cl, हमको पता है कि ईच कार्बन कंटेन हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ दिखा देंगे पैरा पोजीशन पे H और यहाँ पे हो गया Cl और यहाँ पे हो गया H, और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कांक H2SO4 और इसको क्या कर देंगे, हीट, ओके। तो व्हेन क्लोरल रिएक्ट विथ डाइक्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का हम कितना मोल यूज करेंगे, 2 मोल, ओके। और रिएक्ट कराएंगे किससे, क्लोरल से, इन द प्रेजेंस ऑफ कांक H2SO4, कांक H2SO4 के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों निकल जाएगी। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, ओके। तो
तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ लिख सकते हैं CCl3 बॉन्ड C, यहाँ पे अटैच है H, या हम यहीं पे लिख सकते हैं H, और ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, ओपन हो गए, खाली फ्री हो गए। अब इससे इतना निकल गया तो ये दोनों चीज़ आकर के इसी बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। ये बचा क्या, यहाँ पे Cl ओके, मतलब CCl3 और यहाँ पे CH और H2O क्या हो गया, बाहर हो गया, -H2O, बचा क्या, बेंजीन, और यहाँ पे Cl। ये हमारा है DDT। ओके, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन, या इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं Cl। ओके, तो ये हमारा है DDT। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूज एंड हार्म्स ऑफ DDT। ओके गाइज, प्रॉपर्टीज ऑफ DDT। फर्स्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये लगभग वाटर में इनसॉल्युबल है बट स्लाइटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें ये स्लाइटली सॉल्युबल है। सेकेंड, इट इज़ कलरलेस, यह कलरलेस होता है। एंड थर्ड, इट इज़ ऑर्डरलेस। एंड फोर्थ, इट इज़ हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मतलब ये वाटर का विरोध करता है। एंड फोर्थ, क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है कि ये क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपने देखा कि डाईक्लोरो